1 year Bible reading plan, जेम्स 4th चैप्टर 13 से लेकर 5th चैप्टर 1 to 20 वर्स एंड एजेकियल 24 to 26 वर्स, 24 चैप्टर 25 चैप्टर एंड 26 वर्स, 26 चैप्टर 24 25 26 चैप्टर, पूरा चैप्टर 24 चैप्टर 25 चैप्टर 26 चैप्टर। तो एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 वचन से शुरू करना है पढ़ने को, 5 अध्याय में जाना है, वहाँ से आगे 20 वचन तक पढ़ना है, पहले वचन से 20 वचन तक। फिर यहेजकेल की भविष्यवाणी 24, 25 और 26 अध्याय पढ़ना है। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन को पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जेम्स 4th चैप्टर 13th वर्स से शुरू करेंगे। गो टू नाउ ये दैट से टुडे और टुमारो वी विल गो इनटू सच अ सिटी एंड कंटिन्यू देयर अ ईयर एंड बाय एंड सेल एंड गेट गेन, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, say and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Chapter 5. Wicked rich men want of God's judgment, of patience we ought to pray in adversity. First verse से पढ़ेंगे। Go to now ye rich men and weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth eaten. Your gold and silver is cankered, and the rest of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton. Ye have nourished your hearts as in a day of slaughter. Ye have condemned and killed the just, and he doeth not resist you. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and later rain. But ye also patient establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay be nay, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any mercy? Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he hath committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. 20 वचन को आप ध्यान से पढ़ना। जो हमने अभी तक बातें की थी वही बातें ये वचन बता रहा है कि हम कितने इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दिया है। हम हिंदी में पढ़ेंगे यही वचनों को। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। 13 वचन से, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है, जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। धनवानों को चेतावनी। 5 अध्याय पहले वचन से, हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोवो। तुम्हारा धन बिगाड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी यह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, और वह तुम्हारा सामना नहीं करता। दुख में धीरज धरना। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हकीम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है
तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम में उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिसे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेहन न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेहन नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। मैंने आपको 20 वचन के विषय में ज़्यादा ध्यान देने बोला था ना। देखिए, हम दोबारा पढ़ेंगे इसे। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। Ezekiel 24 chapter. By a boiling pot is shown Jerusalem's destruction. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Again in the 9th year, in the 10th month, in the 10th day of the month, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, write thee the name of the day, even of the same day the king of Babylon set himself against Jerusalem this same day. And utter a parable unto the rebellious house, and say unto them, Thus saith the Lord God, Set on a pot, set it on, and also pour water into it. Gather the pieces thereof into it, even every good piece, the thigh and the shoulder. Fill it with the choice bones. Take the choice of the flock, and burn also the bones under it. And make it boil well, and let them seethe the bones of it therein. Wherefore, thus saith the Lord God, Woe to the bloody city, to the pot, whose scum is therein, and whose scum is not gone out of it. Bring it out piece by piece. Let no lot fall upon it, for her blood is in the midst of her. She set it upon the top of a rock. She poured it not upon the ground to cover it with dust, that it might cause fury to come up to take vengeance. I have set her blood upon the top of a rock, that it should not be covered. Therefore, thus saith the Lord God, Woe to the bloody city! I will even make the pie for fire great. I will make the pile for fire great. Heap on wood, kindle the fire, consume the flesh, and spice it well, and let the bones be burned. Then set it empty upon the coals thereof, that the brass of it may be hot and may burn, and that the filthiness of it may be molten in it, that the scum of it may be consumed. She hath wearied herself with lies, and her great scum went not forth out of her. Her scam shall be in the fire. In thy filthiness is lewdness, because I have purged thee, and thou wast not purged. Thou shalt not be purged from thy filthiness any more, till I have caused my fury to rest upon thee. I, the Lord, have spoken it. It shall come to pass,
and I will do it. I will not go back, neither will I spare, neither will I repent. According to thy ways and according to thy doings shall they judge thee, saith the Lord God. Also the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke. Yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down. Forbear to cry, make no mourning for the dead. Bind the tire of thine head upon thee, and put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of man. So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died. And I did in the morning as I was commanded. And the people said unto me, Will thou not tell us what these things are to us, that thou doest so? Then I answered them, The word of the Lord came unto me, saying, Speak unto the house of Israel. Thus saith the Lord God, Behold, I will profane my sanctuary, the excellency of your strength, the desire of your eyes, and that which your soul pitieth, and your sons and your daughters, whom ye have left, shall fall by the sword. And ye shall do as I have done. Ye shall not cover your lips, not eat the bread of men. And your tires shall be upon your heads, and your shoes upon your feet. Ye shall not mourn nor weep, but ye shall pine away for your iniquities, and mourn one toward another. Thus Ezekiel is unto you a sign, according to all that he hath done shall ye do. And when this cometh, ye shall know that I am the Lord God. Also thou, son of man, shall it not be in the day when I take from them their strength, the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their minds, their sons, their eyes, from them not be in the day when I take from them their strength, the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their minds, their sons and their daughters, that he that escapeth in that day shall come unto thee, to cause thee to hear it with thine ears. In that day shall thy mouth be opened to him which is escaped, and thou shalt speak and be no more dumb. And thou shalt be a sign unto them, and they shall know that I am the Lord. Chapter 25. God's vengeance on the Ammonites, Moab, Seir, and upon the Philistines. First verse से पढ़ेंगे. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, set thy face upon against the Ammonites, and prophesy against them, and say unto the Ammonites, Hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God, because thou sayest, Aha, against my sanctuary, when it was profaned, and against the land of Israel, when it was desolate, and against the house of Judah, when they went into captivity. Behold, therefore I will deliver thee to the men of the east for a possession, and they shall set their palaces in thee, and make their dwellings in thee. They shall eat thy fruit, and they shall drink thy milk. And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a coaching place for flocks. And ye shall know that I am the Lord. For thus saith the Lord God, because thou hast clapped thine hands, and stamped with the feet, and rejoiced in heart with all thy despite against the land of Israel. Behold, therefore, I will stretch out mine hand upon thee, and will deliver thee for a spoil to the heathen,
And I will cut thee off from the people, and I will cause thee to perish out of the countries. I will destroy thee, and thou shalt know that I am the Lord. Thus saith the Lord God, because that Moab and Seir do say, Behold, the house of Judah is like unto all the heathen. Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Beth Jeshimoth, Baal, Meon, and Kiriathaim, unto the men of the east with the Ammonites, and will give them in possession, that the Ammonites may not be remembered among the nations. And I will execute judgments upon Moab, and they shall know that I am the Lord. Thus saith the Lord God, because that Edom had dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended and revenged himself upon them. Therefore thus saith the Lord God, I will also stretch out mine hand upon Edom, and will cut off man and beast from it, and will make it desolate from Teman, and they of Dedan shall fall by the sword. And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel, and shall do in Edom according to mine anger and according to my fury, and they shall know my vengeance, saith the Lord God. Thus saith the Lord God, because the Philistines have dealt by revenge, and have taken vengeance with a despiteful heart to destroy it for the old hatred. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I will stretch out mine hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethims, and destroy the remnant of the sea coast, and I will execute great vengeance upon them, and furious rebukes, and they shall know that I am the Lord, when I shall by my vengeance upon them. I shall lay my vengeance upon them. Chapter 26, Judgment of Tyrus by Nebuchadnezzar. First verse से पढ़ेंगे. And it came to pass in the 11th year, in the first day of the month, and the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, because that Tyrus hath said against Jerusalem, Aha, she is broken, that was the gates of the people. She is turned unto me, I shall be replenished, now she is laid waste. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Tyrus, and will cause many nations to come up against thee, as the sea causeth his waves to come up. And they shall destroy the walls of Tyrus, and break down her towers. I will also scrape her dust from her, and make her like life the top of a rock. It shall be a place for the spreading of nets in the midst of the sea, for I have spoken it, saith the Lord God. And it shall become a spoil to the nations, and her daughters which are in the field shall be slain by the sword, and they shall know that I am the Lord. For thus saith the Lord God, Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadnezzar king of Babylon, a king of kings from the north, with horses and with chariots, and with horsemen and companies, and much people. He shall slay with the sword thy daughters in the field, and he shall make a fort against thee, and cast a mount against thee, and lift up the buckler against thee. And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers. 10th verse. By reason of the abundance of his horses, their dust shall cover thee. Thy walls shall shake at the noise of the horsemen, and of the wheels, and of the chariots, and when he shall enter into thy gates, as men enter into a city wherein is made a breach. With the hoofs of his horses shall he tread down all thy streets. He shall slay thy people by the sword, and thy strong garrisons shall go down to the ground. And they shall make a spoil of thy riches, and make a prey of my merchandise, and they shall
break down thy walls, and destroy thy pleasant houses, and they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the water. And I will cause the noise of thy songs to cease, and the sound of thy harps shall be no more heard. And I will make thee like the top of a rock. Thou shalt be a place to spread nets upon. Upon that thou shalt be built no more, for I the Lord have spoken it, saith the Lord God. Thus saith the Lord God, in Tyrus shall not the isles shake at the sound of thy fall, when the wounded cry, when the laughter is made in the midst of thee. Then all the princes of the sea shall come down from their thrones, and lay away their robes, and put off their broidered garments. They shall clothe themselves with trembling. They shall sit upon the ground, and shall tremble at every moment, and be astonished. And they shall take up a lamentation for thee, and say to thee, how art thou destroyed? Thou wast inhabited of seafaring men. The renowned thy which wast strong in the sea, she and her inhabitants, which caused their terror to be on all that hunt it. आपने यहाँ पर एक वचन देखा कि हंटिंग किया जाता है. ओके, 17 वचन में मैंने पढ़ा अभी. Now shall the isles tremble in the day of thy fall, yea, the isles that are in the sea shall be troubled at thy departure. For thus saith the Lord God, when I shall make thee a desolate city, like the cities that are not inhabited, when I shall bring up the deep upon thee, and great waters shall over thee, when I shall bring thee down with them that descend into the pit with the people of old time, and shall set thee in the low parts of the earth, in places desolate of old, with them that go down to the pit, that thou be not inhabited. And I shall set glory in the land of the living. I will make thee a terror, and thou shalt be no more, though thou be sought, for yet shalt thou never be found again, saith the Lord God. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 24 अध्याय. खौलता हुआ हंडा. पहले वचन से, 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा. हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है. इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आप आग पर रख दो, उसे रख कर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो, और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो. झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो, और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाएं. इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर, जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं. उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरों में किया हुआ खून उसमें है. उसने उसे भूमि पर डालकर धूल से नहीं ढांपा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया. इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है, कि वह ढप न सके, और कि बदला लेने को जलजलाहट पड़ के. प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर, मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा, और अधिक लकड़ी डाल, आग को बहुत तेज कर, मांस का
भली भांति पका मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दे। तब हंडे को छूचा करके अंगारों पर रख दी जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा नगर के द्वार भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध न होगी, न की जाएगी। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यह हिजकिय्याह की पत्नी की मृत्यु। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा है। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रेय को मारकर तेरे पास से लेने पर हूं, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांस ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पांवों में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा तो इस्राएल के घराने में अच्छे गुण द्वारा यहोवा यूं कहता है, तो इसराइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों को का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांवों में जूती पहने रहोगे। न तुम रोवोगे न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यह हिजकिय्याह तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब वह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन से उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हाथ का कारण और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनके आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू इन बातों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये बात जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ।
25 अध्याय अम्मोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुँह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कहे, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे चोच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनियों के देश की को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुमने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति को लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। मोवाब के विरुद्ध भविष्यवाणी। 8 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मोवाब और सईर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख, मोवाब के देश के किनारे के नगरों को, बेत्यशिमोत, बलमोन और किरियातीम, जो उस देश के शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। मैं मोवाब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। एदोम के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यो भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा, और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा, और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पलिश्तियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। 15 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपने युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, और करेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। सोर के विरुद्ध भविष्यवाणी। 11वें वर्ष के पहले महीने, 26 अध्याय के पहले वचन से पढ़ रहे हैं। 11 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नष्ट हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और ऐसा करूँगा कि बहुत सी जातियाँ तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है। वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और वह जाति जाति से लूट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं, वे तलवार से मारी जाएगी।
तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। आपने बहुत ध्यान से सुनना है ये सारी बातें, ओके। देखो, परमेश्वर एक इंसान की तरह बात करता है, वो इंसान की तरह उसकी इरादे, उसके प्लान्स को वो समझा रहा है, स्ट्रैटेजी, ओके, किस प्रकार से वो क्या करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ क्या करने वाला है, ओके। परमेश्वर उनको क्या क्या करने वाला है ये वो भविष्यद्वक्ता को बता रहा है, लेकिन वो जिनके साथ करने वाला है उनको ये नहीं बता रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो लोग सोचेंगे, अरे हमारी किस्मत बुरी थी, अरे हमारा तो ये ठीक नहीं हुआ था, इसकी वजह से ऐसा है, अरे हम तो इसके लिए ऐसा हो गया, ओके। वो लोग गलत समझेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उस दिशा से भटका कर लेकर आया है, ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे। ये भविष्यद्वक्ता को ही सिर्फ मालूम रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ ये सब बोल रहा था। तो आप समझ सकते हैं ना कि किस प्रकार से परमेश्वर जो बोल रहा है वो कैसा इंसान के बीच में अपने अपने मूवमेंट्स को दिखा रहा है, अपने चाले वो मनुष्यों के बीच में लेकर आ रहा है। समझ में आना है हमको ये बात। अगर ये सीक्रेट्स हमने समझ ले तो बहुत कुछ हमको आगे आसान हो जाएगा समझना। आगे पढ़ते हैं हम। और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा, 8 वचन से आगे, तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। देखिए क्या बोला है उसने, ठीक है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का स्ट्रैटेजी जब निकलता है तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है वो परमेश्वर की ओर से निकला हुआ स्ट्रैटेजी है, ओके। वह तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। मैं तेरे गीतों का सुर ताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यूं कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझ में घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तटीय देशों के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहो की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच।
निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकने वालों को डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रख कर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तो फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तो भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। टू ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 जॉन और डैनियल का 7 चैप्टर 8 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 यूहन्ना और दनियल की पुस्तक 7 अध्याय और 8 अध्याय। हम 2 यूहन्ना से पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, और यही सारे वचनों को हम हिंदी में BSI बाइबल में से भी पढ़ेंगे। An exaltation to perseverance. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth, not I only but also all they that have known the truth, for the truth's sake, which dwelleth in us, shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Look to yourselves that we lose not those things which we have roughed, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. ध्यान रखना है, देखिए परमेश्वर के उपदेशों के अंदर हमको रहेंगे तो हम में परमेश्वर और उसका पुत्र है, हम धोखा नहीं खा सकते हैं। ओके, 9th वचन देखिए कैसे लिखा है। Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. देखिए, for he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full. The children of thy elect sister greet thee. Amen. 2 यूहन्ना पहले वचन से पढ़ेंगे। अभिवादन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। आमीन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति और सत्य
और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। सत्य और प्रेम, चौथे वचन से, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है, साझी होता है। अंतिम अभिवादन। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याह से नहीं लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। डैनियल 7th चैप्टर और 8th चैप्टर पढ़ेंगे। 7th चैप्टर, Daniel's vision of the four beasts and of God's kingdom। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens drew upon the great sea, and four great beasts came from the sea, diverse one from another. The first was like a lion, and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. And behold, another beast, a second, like to a bear, and to it raised up itself on one side, and it had three ribs in the north of it between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it four wings of a fowl. The beast had also four heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. I beheld them then because of the voice of the great words which the horn spake. I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season,
and time. I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him dominion, and glory, and kingdom, that all people, nations, languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst of my body, and the visions of my head troubled me. I came near unto one of them that stood by, and asked him the truth of all this. So he told me, and made me know the interpretation of the things. These great beasts which are four kings, which shall arise out of the earth, but the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass, which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellow. I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them, until the Ancient of the Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possess the kingdom. Thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times, and the dividing of time. But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, to consume and to destroy it unto the end. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitations much troubled me, and my countenance changed in me, but I kept the matter in my heart. Chapter 8, Daniel's vision of the ram and he-goat. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. In the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw, that I was at Shushan in the palace which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand. But he did according to his will, and became great. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground. And the he-goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram,
that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore that he goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land. And it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host of the stars to the ground, and stamped upon them. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down, and an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. And I cast down the truth to the ground, and it practiced and purposed. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? And he said unto me, Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. And it came to pass, when I Daniel had seen the vision, and saw for the flood before me as the appearances of the man. And I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid, and fell upon my face. But he said unto me, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Now, as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground, but he touched me and set me upright. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for all the time appointed the end shall be. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia. परमेश्वर किस प्रकार से सब बातों में मूवमेंट्स दिखाता है, हैरानी होती है जब सब पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें इतनी समझ में आ रही है। तो 21st वर्स से पढ़ेंगे। एंड द रफ गोट इज द किंग ऑफ ग्रेशिया, एंड द ग्रेट हॉर्न दैट इज बिटवीन हिज आईज is the first king. Now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nations, but not in his power. And in the later time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his land, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. And the vision of the evening and the morning which was told is true. Wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. And I Daniel fainted and was sick certain days afterward.
I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. दनियल की पुस्तक 7 अध्याय हम पढ़ेंगे। दनियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। 4 पशु। पहले वचन से, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दनियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दनियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा हो किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर का बल उठा हुआ था और उसके मुंह के में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसके पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ी बोलने वाला मुंह भी है। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे हुए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजियाला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। इस प्राचीन के प्रमुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते वो अंत में देखा कि वह जंतुघात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। पशुओं का अर्थ 15 वचन से आगे। मुझ दनियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे,
परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी धनी रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथी जंतु का भेद भी जान लो, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता था और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य लोगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने को मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल हो गया जब तक वह अति प्राचीन न आया, और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे और उस पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 लोगों का अर्थ यही है। और उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद इन पहेलियों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो बहुत ध्यान से पढ़ने जैसी बातें हैं ये, जो 3 राजाओं को लिए गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समय और व्यवस्था के बदले देंगे कि को बदल देंगे कि आशा करेगा, वरन 7.5 साल काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। मैं जब दी पुकारा तू सुनता मेरी, तू तसल्ली का चश्मा वो भरपूर जीवन तेरे जीवन के पत्ती पर है क्यों उदास, तरस खाता यीशु तुझ पर, देगा नया जीवन के पत्ते पर तू क्यों उदास, तरस खाता यीशु तुझे पर देता है।
झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। चौबीस वचन से आगे पढ़ेंगे। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहिलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती के पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका हूँ, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। पहले वचन से पढ़ेंगे 8 अध्याय। बेलतशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उल्लाई नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर सींग भरता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह, ये सब मुझे लगता है मतलब वचन के अनुसार तो यही है कि ये जो शैतानी शक्तियों को गिराया गया, वहाँ का ही ये
वर्णन किया जा रहा है। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वालों अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा है देखा गया है वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलय नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रोवार बकरा यूनान का राज्य है। और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हकीमों के हकीम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।